Good morning, my little champs. How are you all? I hope you all are doing great. Okay, students, today we are going to read poem Great, Wide, Beautiful and Wonderful World. These are the adjectives that are used for world. Our world is great, wide, beautiful and wonderful. Okay, let's move to the warm up. Have you ever sat under a tree? Breathe the fresh air and listen to the sounds of the animals and birds that live on the trees. Yes, I think you have done. आपने ऐसा किया है. डेफिनेटली आप कभी अकेले किसी ट्री के नीचे बैठे होंगे, फ्रेश एयर को ब्रीथ किया होगा. Yes, and you have listened to the sounds of the animals. If you haven't, try it and describe your experience. Okay, let's read it. Planet Earth is over 4.5 billion years old. Our Earth came into form before 4.5 billion years old. हमारी अर्थ कब बनी थी? 4.5 billion years पहले. Almost 71% of the Earth's surface is covered with water. जो हमारी अर्थ है उसका 71% किससे कवर है? वाटर से. यानी 1/3 पार्ट हमारी अर्थ का वाटर से कवर्ड है. इन द पास्ट देयर वॉज ओनली वन लार्ज लैंड मास ऑन अर्थ विच देन स्प्लिट इंटू 7 कॉन्टिनेंट्स. पहले काफ़ी टाइम पहले सिर्फ एक ही लार्ज लैंड मास था अर्थ पे, लेकिन अब वो 7 कॉन्टिनेंट्स में डिवाइड हो गया है. स्प्लिट क्या होता है? डिवाइड. लाइफ ऑन अर्थ फॉर्म्ड अराउंड 4.1 बिलियन ईयर्स एगो. इट इज़ कॉमनली बिलीव्ड that human beings evolved from primates and have walked on earth for the last 2 lakh years. यानी इतने ईयर्स पहले, काफ़ी पहले क्या हुआ था? ह्यूमन बींग्स कैसे फॉर्म में आए थे? कैसे डेवलपमेंट हुई थी? प्राइमेट्स. प्राइमेट्स क्या होता है कि हम पढ़ते नहीं हैं कि पहले इंसान बंदर थे. तो प्राइमेट्स क्या होता है कि एक मतलब एनिमल टाइप या वानर रूप लगा लो, बंदरों की तरह थे. ठीक है, ह्यूमन बींग्स पहले. तो धीरे धीरे उनमें इम्प्रूवमेंट होती गई और हम बन गए. लेकिन अभी भी कुछ बच्चे इतने नॉटी हैं कि वो मंकीज़ वाली एक्टिविटीज़ ही करते हैं. अर्थ इज़ द ओनली प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम विच सपोर्ट्स लाइफ एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म. आपको पता है कि सोलर सिस्टम की फैमिली है, 8 प्लैनेट्स हैं, लेकिन अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पे लाइफ पॉसिबल है. Okay students, now we are going to read the poem. The poet describes the beauty of nature in detail. Read the poem to know more. Great, wide, beautiful, wonderful world, with the wonderful water round you curled, and the wonderful grass upon your breast, world you are beautifully dressed. Here you can see rhyming words: world, curled, breast, dressed. Maximum time you have seen rhyming words in the poem. So when we write or when we make a poem, we have to keep remember about the rhyming words. Okay, now here is a girl. She is describing the nature. She is describing all these things. She is amazed by the beautiful world because world is such an amazing place. जो गर्ल है वो वर्ल्ड से बहुत ज़्यादा अमेज्ड है, बहुत ज़्यादा, मतलब वो वर्ल्ड के लिए क्या डिस्क्राइब कर रही है कि वर्ल्ड में इतना कुछ है कि शायद सिर्फ हम उसकी इमेजिनेशन ही कर सकते हैं. जो हमारा वर्ल्ड है वो ग्रेट है, वाइड है, ब्यूटीफुल है और वंडरफुल है. विद द वंडरफुल वाटर राउंड यू कर्ल्ड. देयर इज़ अ लॉट ऑफ वाटर ऑन द अर्थ सरफेस. देयर इज़ अ लॉट ऑफ वाटर विच इज सराउंडेड द अर्थ. एंड द वंडरफुल ग्रास अपॉन योर ब्रेस्ट. एंड द ग्रास इज ऑन द लैंड. ब्रेस्ट क्या होती है? चेस्ट. और जो अर्थ है हमारी, जो अर्थ के ऊपर ग्रास है, उसको एज अ ब्रेस्ट गर्ल ने डिस्क्राइब किया है.
वर्ल्ड यू आर ब्यूटिफुली ड्रेस्ड। ड्रेस्ड मीन्स ड्रेस्ड। ड्रेस्ड क्या कि कितनी सारी ग्रीनरी है हमारी अर्थ के ऊपर, ठीक है। यू हैव ब्यूटिफुल ट्रीज, वाटर, ग्रास अराउंड यू। सो द गर्ल इज अमेज्ड बाय द ब्यूटी ऑफ वर्ल्ड। The wonderful air is over me, and the wonderful wind is shaking the tree. It walks on the water and hills the mills, and talks to itself on the top of the hills. Now, the next is in this stanza we have read that the chest is decorated with grass, and now we are reading about air, wind, water. Now the girl says, air is something that present all over, around, below, above, right, left. You know very well that air is present all over. And because of the wind, leaves of trees are moving. जब हमें leaves जो हैं, पत्ते पेड़ों के हिलते हैं, हमें पता चल जाता है ना that wind is blowing, कि हवा चल रही है. It walks on the water and hills the mills. और ये वाटर के ऊपर भी चलती है ना. अब एयर तो हर जगह प्रेजेंट है. If you will go to a hilly areas, you feel fresh and cool air. So the air is enjoying and talking to itself, and it helps to move mills. Third stanza. Your friendly earth, how far do you go, with the wheat fields that nod and the rivers that flow, with cities and gardens and cliffs and isles, and people upon you for thousands of miles. Now the girl says that she is asking earth, earth, how long are you? कि आपकी लेंथ कितनी है, कि जहाँ तक भी नज़र जाती है वहाँ पर आपका एरिया है. हमें पता ही नहीं चलता कि अर्थ का एंड कहाँ पर है. ऑन द वे आई एम वॉचिंग फील्ड्स एंड रिवर्स, बट आई डोंट नो वेयर द अर्थ एंड्स. जब हम चलते हैं रास्ते में, गर्ल क्या कहती है, व्हाट शी सेज, कि रास्ते में वीट फील्ड्स हैं, रिवर्स हैं, सिटीज़ हैं, गार्डन्स हैं, रॉक्स हैं, माउंटेन्स हैं, ठीक है. तो वर्ल्ड का जो एरिया है वो बहुत ही ज़्यादा वास्ट है. लोग आपके ऊपर थाउजेंड्स ऑफ माइल्स ट्रेवल करते हैं, बट वी डोंट नो वेयर इट एंड्स, कि ये जो अर्थ है वो कहाँ पे ख़त्म होती है. नाउ द लास्ट इज, यू आर सो ग्रेट एंड आई एम सो स्मॉल, आई ट्रेम्बल टू थिंक ऑफ यू वर्ल्ड एट ऑल, एंड येट व्हेन आई सेड माई प्रेयर्स टुडे, अ विस्पर इनसाइड मी सीम टू से, you are more than the earth, though you are such a dot. You can love and think, and the earth cannot. Now again the girl says, she is addressing the world. She says, she is asking earth that what is your length, and she says the area of world is very vast. कि कहीं पे rivers हैं, कहीं पे mountains हैं, कहीं पे cities हैं, कहीं पे gardens हैं. The girl compares herself with world. She says, when I think about the entire world, I feel trembling. Trembling क्या होता है? Shaking. कि मतलब वो कांप जाती है एकदम से अगर वो वर्ल्ड के बारे में सोचती है कि वर्ल्ड कितना एरिया, कितना वास्ट है, कितना बड़ा है, मैं तो बहुत छोटी हूँ. A whisper inside me seemed to say. अब नेक्स्ट क्या है? वर्ल्ड ने क्या आंसर किया? You are more than the earth, though you are such a dot. आप बेशक से एक डॉट की तरह हो, आप एक डॉट हो, छोटे डॉट हो, लेकिन आप अर्थ से बहुत ज़्यादा हो. यू आर मोर देन द अर्थ. यू कैन लव एंड थिंक एंड द अर्थ कैन नॉट. ठीक है, अर्थ पे हम लोग रहते हैं. अर्थ एक ऐसा प्लेनेट है जो लाइफ को सपोर्ट करता है. ग्रीनरी है वहाँ पे, नेचर की जितनी भी अच्छी चीज़ें हैं वो सब अर्थ के ऊपर अवेलेबल हैं. लेकिन जैसा कि वो गर्ल को कहते हैं कि जैसे आप सोच सकते हो, आप प्यार कर सकते हो, यू आर ए ह्यूमन बीइंग, अर्थ ऐसा नहीं कर सकती. तो आप अपने आप को छोटा मत समझो. नोबडी इज़ स्मॉल. सबकी अपनी क्वालिटीज़ हैं.
हर किसी में कैपेबिलिटी होती है कुछ ना कुछ करने की. सो दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल पोम स्टूडेंट्स. आप इसको वैसे भी लर्न कर सकते हो, किसी जब आपका अर्थ डे आता है या कुछ भी, उसके लिए भी इसको रिसाइट कर सकते हो, प्रिपेयर कर सकते हो. एंड दिस पोम इज़ रिटन बाय विलियम ब्राइटी रैंड्स. यू हैव टू राइट द पोइट नेम ऑल्सो. ओके, लर्न दिस and you have to write question answers in your notebook. I am going to send you pics and you have to write question answers and reference to the context in your notebook in a very neat handwriting. And in your Google Meet class that will be held on Friday. Okay, I will take your test of question answers. So learn these 4 question answers for your test. Okay students, have a nice day. Bye bye.